Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q3 and 9-month FY25 earning conference call hosted by Shakti Pumps India Limited. As a reminder, all participant line will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst& Young LLP. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that this discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future result performance or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. Today, from the senior management of Shakti Pump India Limited, we have with us Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer. Before I hand over the call to Mr. Dinesh Patidar for his remarks, I would like to give a brief overview about Shakti Pump India Limited for those who might be joining first time in our call. Shakti Pump India Limited is one of the leading integrated manufacturer of pump, motors, controllers, VFDs, and inverters in India. The company currently manufactures most of the critical components of the pump in-house and provide end-to-end solution in solar pumps. The company has 3 state-of-the-art manufacturing facilities in Pithampur, Madhya Pradesh. With a rich legacy of over 4 decades, the company is led by Mr. Dinesh Patidar. The company has made a strong presence in domestic market and also made a strong foothold in 100 countries globally. Shakti Pump also has a strong focus and commitment to technology and R&D, which is evident by the 15 patents it has received so far. The company ability to manufacture high quality products on the back of its backward integrated manufacturing capabilities has translated into higher acceptance of its products by the farmer, thereby increasing the installation of solar pumps. The company is one of the largest supplier of the pump with approximately 25% market share under the PM KUSUM scheme all over the India, and also has a robust market share in the largest agriculture states in the country like Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Maharashtra. The PM KUSUM scheme is pivotal government initiatives designed to promote irrigation efficiencies in India by replacing the conventional diesel or electrical pumps with solar pumps. This transition provides farmers with a reliable power supply, support micro irrigation, and improve both crop yield and farmers' income. Additionally, farmers can also earn extra income by selling extra electricity back to the grid. PM KUSUM is the largest of the several government schemes encouraging solar pump adoption, benefits state governments and electricity boards by simplifying power supply management. It also reduces fossil fuel reliance and cuts greenhouse gas emissions, contributing to a more sustainable economy. In addition to PM KUSUM scheme, the company sells its products to governments through various other schemes and in the major exports markets also. The company has also diversified into manufacturing of electric controllers and motors for EV, securing pilot orders from OEMs. In conclusion, Shakti Pump India Limited stands as a testament to innovation, quality, and sustainability in the pump manufacturing industry. As SPIL continues to invest in its growth and technology advancement, the company will continue to lead by example and ensure prosperity for farmers and all other stakeholders. With that, I would
like to hand over the call to Mr. Dinesh Patidar, sir, for the quarterly and other business highlights. Thank you, and over to you, sir. धन्यवाद रोहित। सभी दोस्तों को नमस्कार और आज इस कॉल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन की मान्यता प्राप्त की है। ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है जो हमारी टीम को मजबूत और प्रेरित करने के लिए एक प्रमाण के रूप में है। ये कल्चर ऑफ इनोवेशन को और सहयोग और कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा इस क्वार्टर में जो रिजल्ट जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ हमारी टीम के परफॉर्मेंस से। हमारी टीम ने इस क्वार्टर में 650 करोड़ रुपए की सेल की है, जो हमने हमारे ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। जो हमारे पुराने रिकॉर्ड थे उनको हम तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने EBITDA 154 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में हमारा रहा है, जिसने हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 9 मंथ के रिकॉर्ड को हम देखें तो 1891 करोड़ की हमने सेल की है, जिसमें 439 करोड़ का EBITDA रहा है। हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स भी हैं और सभी प्रदेशों से हैं और करीब ऑर्डर बुक हमारी आने वाले समय की जो ऑर्डर्स हैं उसकी बुक 2000 करोड़ की है। अभी एक स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में जो एक स्कीम चालू की है, मेंगल तालिया सौर कृषि पंप योजना, जिसमें हमको 754 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। एक ऑर्डर हमको हरियाणा स्टेट से मिला है जो 116 करोड़ का है। हम सोलर पंप के उद्योग में विशेष रूप से PM कुसुम के साथ में मेघल तालिया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्कीम में अपनी मौजूद अवसर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस सेगमेंट में हम लगातार विकास के लिए अच्छी स्थिति में हैं। हमारा मानना है कि हम सोलर पंप की डिजाइन और निर्माण में हमारी विशेष क्षमता है। टेक्निकली, क्वालिटी वाइज और प्रोडक्शन वाइज हम लोग अभी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कस्टमर्स को सर्विस कर पा रहे हैं और हमारे कस्टमर भी हमारी क्वालिटी और सर्विस से सेटिस्फाइड है। हमारा EV बिजनेस भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के साथ में पायलट ऑर्डर्स के साथ में उनके जो डिजाइन सेगमेंट में हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और उसमें भी हमको एक अच्छी सफलता दिख रही है, क्योंकि उसमें हमने R&D में बहुत अच्छा काम किया है, जहां हम EV की मोटर्स और कंट्रोलर्स बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारे निर्यात कारोबार में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर भी हमने अच्छी ग्रोथ की है। जो 50 करोड़ हमारा क्वार्टर हुआ करता था वो अब 106 करोड़ के आसपास क्वार्टर हुआ है और 9th मंथ में भी हमने 58% ग्रोथ की है। मुझे लगता है हमारी टीम भी कॉन्फिडेंट है, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला समय जो है हम जरूर उसमें अपनी स्थिति मजबूती से रखेंगे और उसके लिए हमारे शेयरधारकों के हित में हम आगे और बढ़ते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी इंडिया में सोलर पंपिंग बिजनेस में हमेशा आगे बने रहने के लिए तत्पर रहेगी। मैं बाकी फाइनेंशियल सेगमेंट के लिए दिनेश पटेल को कॉल सोचता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. We have continued to deliver a strong performance with Q3 FY25 revenue at rupees 649 crore, up by 30.9% YOY from rupees 496 crore. We have also delivered a solid performance in terms of profitability. EBITDA for the quarter was at rupees 154 crore as compared to rupees 71 crore, a growth of 117% YOY. Due to the higher execution of orders and our consistent efforts towards operational efficiency, EBITDA margin have expanded to 23.8% in Q3 FY25 from 14.3% in Q3 FY24. PAT in Q3 FY25 has increased by 130% to reach rupees 104 crore. PAT margin has expanded to 16% from 9.1% in Q3 FY24.
a 692 BPS expansion is there. EPS for the quarter stood at rupees 8.7 per share as compared to rupees 4.1 per share. Now moving on to 9-month FY25, revenue from operation stood at rupees 1851 crore, up by 143% from rupees 762 crore in 9-month FY24. EBITDA for the 9-month FY25 increased to rupees 439 crore from rupees 94 crore in 9-month FY24. EBITDA margin for 9-month FY25 was at 23.7% as compared to 12.4% in the corresponding period of last year. PAT was reported at rupees 298 crore as against rupees 52 crore in 9-month FY24. PAT margin also expanded significantly to 16.1% as compared to 6.8% in 9-month FY24. EPS reached to rupees 24.8 per share in 9-month FY25 from rupees 4.7 per share in 9-month FY24. Our robust financial position and strong key metrics bolster our confidence in timely execution of orders, further reinforcing our market share. With this, I may request the moderator to open the floor for question and answer. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Nirav from Ask Investment Managers. Please go ahead. हेलो सर, और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये जाना सर, हमारे जो Q3 के बाद का जो ऑर्डर बैकलॉग है जो तकरीबन 2070 करोड़ का है, उसमें से जीएसटी कितना होगा? तकरीबन 18% होगा। 13.5% somewhere. 13.5%। Yes, yes. ठीक है, ब्लेंडेड बेसिस पे बोल रहे हैं ना आप सर? हाँ जी। ठीक सर, दूसरा ये मैं देख रहा था कि जो हमारा अजमेर डिस्कॉम का ऑर्डर है उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि Q2 का पीपीटी में भी प्रैक्टिकली सेम अमाउंट था और Q3 में भी सेम है। तो जानना, वो ऑर्डर में कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है या क्या टेक्निकल इशू आ रही है उसमें? नीरव, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये हमारा वो पंप है जिसको अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने वाला सेगमेंट है। ये पहली बार पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने पंप के साथ किया है। अभी तक कुसुम सी का पार्ट था ये। तो इसमें चूंकि ये ग्रिड कनेक्टेड पंप है और इसको अचीव करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए हम खुद ही इसको स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अभी इस पे आगे अगले क्वार्टर में ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरा 150 करोड़ का ये एक ऑर्डर है और आने वाले समय में इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस वाइज, क्योंकि जो है ये हमारे लिए भी प्रोडक्ट नया है और डिपार्टमेंट के लिए भी सिस्टम नया है। तो उसमें जो प्रोसेस है वहाँ की, क्योंकि जो अजमेर का जिस एरिया में हम उसको काम कर रहे हैं उसके अपने चैलेंजेस है। तो पायलट प्रोजेक्ट में हमेशा चैलेंजेस होते हैं। जैसे जैसे हम उन चीज़ों को क्लियर करते बढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग इसको और भी स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सर यानी ये Q4 में एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, कैसे लगता है आपको? पूरा का पूरा निपट जाएगा Q4 में? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमने अभी उस पर कुछ करीब 350-400 पंप इंस्टॉल किए हैं वहाँ। आगे और हम करने के लिए उसमें प्लान कर रहे हैं आगे। तो डिपेंड करता है, धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे क्लियरिटी होती जाएगी हमारी पिक्चर की, उसमें हम आगे उसको बढ़ाएंगे। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये था सर कि हम ये साल के लिए तकरीबन 2500 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमने 9 महीने में 1850 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बुक कर दिया है। यानी Q4 में तकरीबन 650 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हम टारगेट कर सकते हैं अगर उस अनुमान के अनुसार चलें। तो Q3 के सामने Q4 में कोई बड़ा ग्रोथ दिखता नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिकली फ्लैट हो जाएगा। इसके ऊपर आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? ये ऐसा है कि हमने हमारा जो टारगेट था वो हमने जो 12 महीने का टारगेट लिया था हमने कंपनी ने हमारी, उसको हमने 9 महीने में अचीव कर लिया।
तो ये हमारी टीम की अच्छी उपलब्धि है, इसको हम अच्छी उपलब्धि मानते हैं। और आगे आने वाले समय में भी हम हमेशा हर कॉल में ये बोलते आए हैं कि 20-25% ग्रोथ हम करते रहेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देखें उसको, ईयर ऑन ईयर देखते रहे। तो जैसा आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा 1400 करोड़ का सेल था, उस पे आप देख रहे हो कि हमने उसको 9 महीने में अचीव कर लिया। आगे भी हम इसी तरीके से करते जाएंगे। हमारे साथ मेन जो इश्यूज हैं वो इश्यूज होते हैं हमारे साथ अपनी कंपनी के प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की कोई इशू नहीं है, मार्केट की कोई इशू नहीं है। अभी हमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है DCR सेल्स की, जो पैनल अवेलेबिलिटी होती है। जैसा हमको लास्ट क्वार्टर में जितने पैनल्स हमको मिले, करीब 70-75 मेगावाट पैनल हमको मिले, वो हमने उसके पंप इंस्टॉलेशन भी कर दिए, एग्जीक्यूट भी कर दिए। अभी कुछ और कंपनियां आई हैं हिंदुस्तान में, और आने वाले क्वार्टर में शायद और भी कंपनियां की प्रोडक्टिविटी आने वाली है। तो हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हमको सोलर पैनल मिले, हमारे पास ऑर्डर बुक भी है, हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास क्वांटिटी भी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अब तो पैनल की अवेलेबिलिटी DCR सेल की नहीं होने के कारण हमने ये सिनेरियो आपने देखा है। आने वाले समय में पैनल की हमको लगता है कि और भी क्वांटिटी इंडिया में बढ़ेगी और उसमें हम और अच्छा करेंगे। ठीक सर, मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि जो हिसाब से सोलर पंप में, क्योंकि जो कुसुम स्कीम है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोविजन करना होता है, तो आपके अनुसार हिंदुस्तान के कौन से वो स्टेट्स हैं जो अपने एनुअल बजट्स में प्रोविजन बढ़ाते जा रहे हैं, और उसका असर आपको 2026 में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना बड़ा दिखता है? आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी अच्छा है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स को सबको इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि ये समझना पड़ेगा कि सोलर पंप स्टेट गवर्नमेंट क्यों लगाना चाहती है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर वो सोलर पंप नहीं लेंगे और कनेक्शन देंगे तो उससे ज़्यादा पैसा उनका खर्च होगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो अब सभी गवर्नमेंट को समझ में आने लगा है, और जितनी जगह हमारे को जितने पैनल हमारे पास अवेलेबल होते हैं उतने ही कस्टमर या उतने ही स्टेट हम खोलते हैं। अभी पैनल की अवेलेबिलिटी है नहीं, हम तमिलनाडु पहुंच जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। इसमें नीरज जी आपको एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो बजट है ना वो नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ में अंडर प्रोसेस स्टेट से, तो एक बार उनके बजट आने देते हैं, देन वी विल कमेंट कि कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। समझ गए। तो सर ये जो DCR पैनल का इश्यू हो रहा है, तो उसमें आपने गवर्नमेंट से कुछ बात किया था कि ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमें इंपोर्ट करने दीजिए ताकि हम इसका एग्जीक्यूशन बढ़ा सकें? ऐसा कुछ इंडस्ट्री ने कुछ रिलैक्सेशन या कुछ मांगा था टेम्पररी पीरियड के लिए? मेरा आत्मनिर्भर भारत है, मोदी जी का देश है, नया सर देश आपकी है। बात बराबर है, लेकिन अभी चलिए ठीक है, वो कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से होगा। हाँ। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू नीरज, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Amit Kumar from Ritz Capital. Please go ahead. सर मेरे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, अपडेट ऑन योर युगांडा प्रोजेक्ट कि उसमें कहाँ तक हम पहुँचे हैं। सेकेंड इज 750 करोड़ का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिला है, वो 2 महीने में आई गेस था हमारे पास कि 2 महीने थे हमें उसे फुलफिल करने के। तो आई थॉट कि वो Q3 में नंबर हाईलाइट होने चाहिए थे या फिर Q4 में होंगे। इसके ऊपर आपकी कोई गाइडेंस? पहले मैं आपको युगांडा के लिए रमेश को देता हूँ, हमारे एक्सपोर्ट डायरेक्टर रमेश हैं, वो आपसे युगांडा के बारे में आपको अपडेट करेंगे। हाँ जी अमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अमित जी, हम लोग युगांडा प्रोजेक्ट में क्वार्टरली ग्रोथ कर रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने 52% का ग्रोथ कर लिया उसमें। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुकी है 52% की। ओके। तो हम लोग उसमें कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और सब कुछ लाइनअप चल रहा है हमारा। वो सारा पैसा आ चुका है। ओके सर। तो सर ऑर्डर के साइड पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो ऑर्डर है, एक्चुअली सर उसको आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो 60 डेज का जो उसमें टाइमलाइन दिया है वो फ्रॉम ऑर्डर डेट है। तो ये हमको LOE मिला है, तो इसमें इसकी जो LOE की जो पूरी एक्सटेंडेड पीरियड है वो 1 ईयर की है। ओके। इस दिन से हमको पोर्टल के थ्रू ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उससे 60 दिन में हमको इंस्टॉल करके देना है। ओके सर।
थैंक यू अमित जी। थैंक यू सर। Thank you. Participants are requested to press star and one on the touchtone telephone to ask a question. The next question is from the line of Praful from Servus Capital. Please go ahead. Hi, sir. Congrats on good set of numbers. I just wanted to check on how much is the receivables on the books as at the end of December. At the end of December, it's around 1175 crore. Okay. Got it, sir. That's it from my end. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Pratik, is an individual investor. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने अच्छे नंबर्स आपने पोस्ट किए। सर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि हम आने वाले 5 सालों में शक्ति पंप्स को कहाँ देख सकते हैं, कितनी बड़ी कंपनी ये बन सकती है? तो क्या हमारे पास ऐसा कोई विजन है, कोई एक रोड मैप बना के रखा है हमने अगले 5 साल के लिए? हाँ सर, प्रोजेक्शन बनते हैं और हम लोग भी उसको डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट भी उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है। एक्चुअली क्या है, आगे के जो अपडेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिवाइज भी करते हैं। और मैनेजमेंट जो आज की स्थिति में है वो हमेशा शेयर होल्डर को यही बोला है कि 25 से 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देते रहेंगे। तो इसी बेसिस पे हम आगे के साल भी देख रहे हैं। तो सर क्या हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस कंपनी को किस साइज तक ले जा सकते हैं हम अगले 5 सालों में? यहाँ इलेक्ट्रिकल मोटर वाली जो कंपनी है हमारी, उसमें हम ये देखना चाहेंगे पहले कि इलेक्ट्रिकल मार्केट नया है, उसमें हम कितनी कंपनियों के साथ में हम टाई अप कर पाते हैं, क्योंकि हम सप्लाई करेंगे ओईएम के रूप में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो ईवी कंपनियां व्हीकल बनाने वाली, उनके साथ। तो एक बार ही उनके साथ सेटअप हो जाए फिर कोई नंबर्स लेके बात करेंगे। लेकिन ये आपको मैं श्योरिटी दूंगा कि आने वाले समय में ईवी में बहुत अच्छा काम होने जा रहा है देश में, और शक्ति भी बहुत अच्छा काम करेगी उसमें, क्योंकि हमारे हाथ में मोटर जो बनाने की टेक्नोलॉजी है, हमारे हाथ में उसके कंट्रोलर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको लेके ऑटोमोबाइल मार्केट में हमको एक अच्छा सपोर्ट और बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल के अपने स्टैंडर्ड होते हैं और अपना एक उनका एक अलग तरह का सिस्टम्स होता है, तो उसमें जरूर समय के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने अभी शक्ति ईवी का जो 25 से 30% ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम शक्ति ईवी को और शक्ति एनर्जी सोल्यूशन जो हमारी कंपनियां हैं उनको छोड़ के शक्ति पंप्स की बात कर रहे हैं कि शक्ति पंप्स में हमेशा हम जो है 25 से 30% ग्रोथ करते रहेंगे। शक्ति ईवी तो ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पे है, उसके जैसे ही 2-4 टाई अप होते हैं। मैंने बीच में कुछ नाम बताए भी थे कि हम उन लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से उसमें काम होगा, तो उसके बारे में और अलग से हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। और शक्ति ईवी बहुत अच्छे अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन पे आगे बढ़ने वाली है, इसीलिए हमने उसमें स्कोप किया। लेकिन फिगर की बात है तो फिगर उस पर जरा अभी एक बार हम लोग स्टार्ट करें, किसी 2-3 कंपनियों के साथ में उनके प्रोडक्शन को लेके आगे बढ़े, उसके बाद उसका प्रोजेक्शन बात करेंगे। अभी तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शक्ति पंप्स का ही है उसमें। तो सर फिर भी अंदाजा कब से वहाँ पर रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर साइड से? आने वाले समय में 6 से 9 महीने और लगेंगे। ओके। एंड सर जो आपने ये महाराष्ट्र ऑर्डर की बात की थी 700 करोड़ वाले की, जिसमें आपने ये कहा कि ये लेटर ऑफ इंटेंट है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ऑर्डर जो है वो एक्चुअल में कब तक आ सकता है? देखिए, एक्चुअली इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। जो ये प्रोसेस है इसमें डिसीजन मेकर फार्मर है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हमको लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, उसमें उन्होंने पोर्टल ओपन किया है। उसमें जितने लोग पंप सिलेक्ट करते जाएंगे हमको, वो पंप सिलेक्शन के अंदर हमको हम उसमें 7 दिन के अंदर उसको पंप सप्लाई करेंगे। मुद्दा वो नहीं है सप्लाई का। मैं आप सभी लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास और भी ऑर्डर खोलने की जगह अवेलेबल है। हम किसी भी गवर्नमेंट में जाके, अभी लास्ट मीटिंग में भी मैंने बोला था कि हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम 1 लाख पंप और ले सकते हैं। लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनको जाके बोलेंगे यस वी आर रेडी टू इंस्टॉल 1 लाख पंप।
बट हमको आज जो हमारी कंसर्न है वो कंसर्न सिर्फ इतनी है कि जितने DCR सेल हमको अभी आज की तारीख में हमने जिन कंपनियों से टाई अप किया है, उन कंपनियों के टाई अप से हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम 25 से 30% ग्रोथ आराम से कर पाएंगे। और भी कोई कंपनियां लाइन में है, प्रोडक्शन आने वाला है, कुछ टाटा का भी प्रोडक्शन में आने वाला है, वारी का भी प्रोडक्शन में आने वाला है, और भी एक दो कंपनियां हैं जो DCR सेल के साथ में प्रोडक्शन में आएगी, उनके साथ एक अगला टाई अप होगा और आगे बढ़ेंगे। शक्ति पंप्स की वजह से कोई भी मार्केट में कोई भी ऑर्डर लूज नहीं होगा। हम रात और दिन अपना कंप्लीट काम करके उसको पूरा करेंगे। अभी हमारी समस्या सिर्फ DCR सेल की है, इसलिए हम अपनी स्पीड को धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो 25 से 30% है। ओके सर, एंड सर मेरा लास्ट क्वेश्चन अकाउंट रिसीवेबल साइड में है। हमारा तकरीबन अभी 1100 से 1200 करोड़ का रिसीवेबल्स है, तो क्या ये हमें हमारे वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट कर रही है? क्या हमारे पास कोई कैश के भी क्रंच हो रहा है ये इतना हाई रिसीवेबल होने के कारण? नहीं, देखिए आप एक्चुअली क्या है, इसमें आपने को ये देखना पड़ेगा कि ये पैसा हमारा सारा ही सिक्योर्ड है, सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी आउटस्टैंडिंग है हमारी, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पैसा सिक्योर्ड है। इसमें एक बात हमको और देखनी पड़ेगी कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट की क्या है। इसकी टर्म्स, इस टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन जो रेट कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने किया है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है 90% पैसा जो है वो आपको जो टेंडर की कंडीशन है उसके हिसाब से 30 दिन में मिलना चाहिए, जो हम समझते हैं 90 से 100 दिन में हमारे पास आता है घूम के। बाकी 10% इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है जो उसमें लिखा है टेंडर कंडीशन में कि 90 डेज RMS पे जो मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग उनको रूरल मॉनिटरिंग सिस्टम से डाटा प्रोवाइड कराते हैं भारत सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, वो डाटा पंप चलने का डाटा उनके पास पहुंचना चाहिए। उसके लिए वो 10% पैसा वो लोग डिपार्टमेंट में ही रखते हैं। 90% पैसा हमको मिल जाता है 90 दिन में। 10% पैसा जो है वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन 90 डेज है, लेकिन वो पैसा आने में तकरीबन 180-200 दिन या कभी कभी 250 दिन भी होते हैं, क्योंकि पंप चलाना हमारे हाथ में नहीं है, वो कस्टमर के हाथ में है, जिससे कि स्कीम भी चले। ये जानबूझ के डाला है भारत सरकार ने कि पंप चले भी, वो भी उनको पता चलता रहे, तो वो डायरेक्टली रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डेटा लेवल आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है। हमारे हिसाब से हम अच्छे तरीके से सारी स्टेट में हमारा कोई पैसा कहीं रुका नहीं है या रुकने नहीं जा रहा है, सब टाइमली आ रहा है। कहीं कुछ इशू नहीं है, कोई बड़े कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार भी टाइम पे पैसा दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। तो सर मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं कर रही है? मैं इसको आपको ऐसे बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली आप देखोगे ना तो लास्ट 1 ईयर मतलब 4 क्वार्टर में भी देखेंगे तो मोर देन 2000 करोड़ का एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो ये जो डेटर्स हैं ऑलमोस्ट 180 डेज के ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे डेटर बड़े नहीं है। दूसरा वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 9 to 10 बैंक्स हैं जो लीडिंग बैंक्स हैं आज की डेट में, उनसे ऑलरेडी एक्सपोजर है। और आज की डेट में जो वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन वो अराउंड 200 करोड़ ही है अभी भी। तो और शक्ति पंप वैसे ही रिच कंपनी है, क्योंकि हमारा कोई टर्म लोन नहीं है, तो मतलब सच हमको कोई वर्किंग कैपिटल पर उसका स्ट्रेस नहीं आता है, ये बताने को। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। Thank you. Participants are requested to press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Pranav from Think Well. Please go ahead. हेलो। हाँ प्रणव जी बोलिए। हाँ सर, पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। मेरा एक सवाल था सर, जो हमारे मार्जिन्स है एबिट और पैट, सस्टेनेबल मार्जिन्स क्या होंगे सर आगे जाके? डिपेंड करेगा हमारे रॉ मटेरियल और डॉलर की प्राइस के ऊपर। आप देखेंगे कि अब ज़्यादातर डिपेंड है हमारी प्राइसिंग को लेके हमारे सोलर पैनल जो DCR पैनल है उसके ऊपर। तो DCR पैनल की प्राइसिंग जैसी हमारे देश में और अच्छी होगी, हमारा मार्जिन और अच्छा बढ़ेगा। DCR पैनल की प्राइस थोड़ी और बढ़ेगी तो शायद हमारा 1-2% मार्जिन कम हो, लेकिन हम जो अभी आज जो आप देख रहे हैं जिस मार्जिन को हमने मेंटेन करके रखा है वो मार्जिन तो हम मेंटेन करके आगे चलेंगे। डिपेंड करता है डॉलर की प्राइस, और क्योंकि डॉलर की प्राइस से पैनल की प्राइस पर फर्क पड़ता है और दूसरे भी कॉपर और स्टील की प्राइस पे भी फर्क पड़ता है। तो हमारा मार्जिन तो जो आपने देखा है कि इतना बढ़िया मार्जिन जो है हमारा, ये मार्जिन हम मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर हमें कितना मार्जिन पकड़ के लेना चाहिए, कौन सा रेंज ऑफ मार्जिन हमें लेना चाहिए? जैसे कि डाउन साइड में हम इतना मार्जिन बना सकते हैं और अप साइड में
जैसे अभी हम 24% बना रहे हैं, तो हमें क्या एक जो 2 मीडियन लेने चाहिए कि लेट्स से हम 20 to 25% मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं? एक रेंज तो होगा ना, जब अगर प्राइसेस। देखिए भाई साहब, मैं अभी आपको यही बता रहा था कि 24% मार्जिन जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन है, और इसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिचुएशन कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे कि डॉलर की प्राइस और सोलर पैनल की प्राइस। तो डॉलर की प्राइस की वजह से हमारी प्राइसिंग थोड़ी इफेक्ट होती है रॉ मटेरियल की, लेकिन आने वाले समय में फिर हम सेल्स की जो प्राइस है हमारी उसको हम बढ़ा पाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो वो चीज़ों का ध्यान में अपने को रखना है। हम ये जो EBITDA में आपने देखा है मार्जिन, ये हम कोशिश करते हैं कि इसको मेंटेन करके रखें। इसमें एक्चुअली अगर आप मिनिमम गाइडलाइन की बात करें तो मैनेजमेंट पहले भी अपनी गाइडलाइन दे चुका है, तो 16 to 18% की गाइडलाइन पहले भी दे चुके हैं कि अगर आपको मिनिमम गाइडलाइन लेके चलना है तो ये रहेगा। और आप मैक्सिमम साइड पे देखना चाह रहे हैं तो अभी एग्जिस्टिंग तो हमारा है ही है, जो भी अभी भी देखा जाए मैक्सिमम साइड ही है। इसको भी हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ये हमारा आपकी सबमिशन है। ओके। एंड सर, ईवी मोटर जो हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस है, उसमें अगर जब भी हम कोई भी OEM को अगर हमें ऑनबोर्ड करना हो एज अ क्लाइंट, तो कितना टाइम लगता है उनको ऑनबोर्ड करने के लिए? अगर जैसे जो प्रोसेस है, जैसे उनको ऑनबोर्ड करने के लिए एज अ कस्टमर, तो कितना टाइम लगता है? 6 से 8 महीने लगते हैं, कभी कभी 1 साल भी लगता है। 1 year। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Somul from Lucky Investment. Please go ahead. हेलो, हाँ बोलिए। थैंक यू सर क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे जानना था सर, रिप्लेसमेंट डिमांड पंप्स की कब आएगी? आउट ऑफ मतलब द 3 लाख एवरेज कॉस्ट ऑफ अ पंप, रफली इफ आई एम करेक्ट, 50% मॉड्यूल का होगा एंड 50% आर मोटर पंप एटसेट्रा। तो इन 50% तो इस 50% जो मोटर पंप वगैरह है, ये हम इन हाउस करते हैं, करेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग। तो मॉड्यूल की लाइफ होगी रफली 20 ईयर्स, 15, 20 साल, 25 साल, वटेवर। एंड ये पंप, कंट्रोलर, इन सब की लाइफ कितनी है? कब आप इनकी रिप्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट डिमांड? पंप तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका वाटर लेवल कैसा है, वहाँ पे उसका पानी का pH लेवल कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10 से 15 साल एक नॉर्मल पंप की लाइफ रहती है, लेकिन अगर pH लेवल गड़बड़ हो तो वहाँ 2 साल पंप चलता है, 1 साल पंप चलता है। वो डिपेंड करता है कि कितना pH लेवल है वहाँ पर। VFD 3 से 5 साल उसकी लाइफ होती है, पर वो भी डिपेंड करता है कि वो किस एटमॉस्फेयर में है। तो सेकेंडरी जो रीसेल मार्केट तो अभी क्रिएट होना चालू हो गया है, और वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। सेकेंडरी मार्केट आना शुरू हो गया, मतलब रिप्लेसमेंट डिमांड आपको देखने लगी है अभी? हाँ, आना भी चालू हो गई और सेल भी चालू है। ओके ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक और ऑर्डर आने वाला था जो काफ़ी डिले हो गया है। आई एम सॉरी, मैंने कॉल लेट ज्वाइन किया तो शायद आपने इसके बारे में बात की हो, बट उस पर कुछ अपडेट्स है? वो डिले हो रहा है बार बार, कुछ एनी अपडेट्स है? नहीं, ऑलरेडी महाराष्ट्र का हमारे पास 750 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है, हमने इन्फॉर्म भी किया है। नो, एक और टेंडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बिड्स गए थे एंड उसके रिजल्ट्स आने बाकी थे, इज दैट करेक्ट? करेक्ट, वो दूसरा टेंडर है, उसमें रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी आएगा आने वाले समय में। मुझे लगता है 15-20 दिन में होना चाहिए। वो 15-20 दिन में होगा? ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, ऑर्डर का ही कमी नहीं है। ये जो कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें जितने हम ऑर्डर लेना चाहे उतने ऑर्डर अवेलेबल होंगे। हमारी समस्या है DCR सेल पैनल की, जो हमको जितने अवेलेबल होते हैं उतने ऑर्डर हम आगे की एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ते हैं। राइट। और अभी हम अडानी और प्रीमियर से DCR सेल्स ले रहे हैं, करेक्ट? राइट, करेक्ट। और इसमें और प्लेयर्स हैं जो सप्लाई कर सकते हैं DCR सेल? नई कंपनियां आ रही है अभी, वो नई कंपनियों से चल रही है बात, अब सबके ऑफर भी आने लगे हैं। तो आने वाले समय में हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि हम 25 से 30% ग्रोथ अभी
कर पाएंगे, कि हमको लग रहा है कि सोलर सेल अवेलेबल होंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि दो बड़ी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। ओके, एंड वन फाइनल क्वेश्चन सर, अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में मॉड्यूल के प्राइसेस बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द एंटी डंप क्लॉज ऑन द सोलर ग्लास, वो मॉड्यूल पे जो लगता है, उसके वजह से आपको कुछ मार्जिन पे प्रेशर आया? बहुत 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 अच्छी खबर रखते हो आप, बिल्कुल बेटर जज हो, आपने बहुत अच्छा निकाला है। उसकी वजह से भी बढ़ा है और डॉलर की वजह से भी बढ़ा है, लेकिन साथ साथ में जैसे जैसे हमारा यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं, हम दूसरे भी काम करते हैं, तो हमने तो मेंटेन करके रखा है हमारे EBITDA लेवल को। कोशिश जारी है, हम और भी आगे काइजन करके और थोड़ा सस्टेनेबल बना के आगे करते जाएंगे। तो हम तो कोशिश तो जारी है, हमारे 150 इंजीनियर R&D में काम करते हैं, हम खुद अपनी R&D कंपनी जैसे ही इसको ट्रीट करते हैं, तो हर जगह हमारे आने वाले समय में और भी आप देखोगे कि R&D में हमारे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। ओके, तो जस्ट टू सम इट अप, वो सोलर मॉड्यूल के कॉस्ट बढ़ने के वजह से जो भी प्रेशर आया होगा, वो आपका कॉस्ट पे कंट्रोल की वजह से, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से वो निगेट हो गया है और आपके मार्जिन उसके बावजूद बढ़े हैं, करेक्ट? राइट। उसके बावजूद हमारा मार्जिन वही है, मेंटेन। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. To ask a question, please press star and one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Kapil, is an individual investor. Please go ahead. सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे नंबर्स आए शक्ति पंप्स के। सर मेरे को पूरी कॉल से जो समझ में आया, ये DCR सेल पैनल का एक थोड़ा सा इशू है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस पे की कंपनी की काफ़ी हद तक आने वाले टाइम पे ग्रोथ डिपेंडेंट है। अच्छा ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं अगर DCR सेल पैनल्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो सर क्या टाइमलाइन देखते हैं आप, कब तक आपको लगता है ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा और अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी आपको? देखिए, ये तो उतनी स्पीड से मार्केट भी बढ़ेगा आने वाले समय में सोलर का, जितनी स्पीड से इंडस्ट्रिया लग रही है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे दो बड़ी कंपनियों ने जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, उनके साथ अभी से टाइप चालू है हमारा, और वो हमको एक अच्छी क्वांटिटी में देना चालू करेगी। तो आने वाले समय में हम उनसे भी स्टार्ट करेंगे, और हम खुद भी प्लान कर रहे हैं कि हम सोलर का प्लांट लगाएं और उसके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक समस्या होगी। तो हम सोच रहे हैं आने वाले समय में आपको ऑलरेडी हमने QIP प्लान किया है, और QIP ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि QIP से हम 400 करोड़ रुपए लेने जा रहे हैं। वो इसीलिए लेने जा रहे हैं कि हम अपना सोलर प्लांट लगाएं। तो सर कितने टाइम पे हम बोल सकते हैं इंटरनली या एक्सटर्नल सोर्सिंग को देखते हुए कि ये मतलब ये प्रॉब्लम, ये इशू नहीं रहेगा, उसका कुछ सर आप टाइम पीरियड डिफाइन कर पाएंगे? हाँ देखिए, अब देखिए हमने जैसे DCR सेल बनाने का यूनिट लगाया, और भी कोई समस्या आएगी तो और भी कुछ करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमको तो कुसुम को देश में सक्सेस करना है और देश को सोलर एनर्जी में आगे ले जाना है। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, हम सोलर एनर्जी में हैं, इसमें जो भी समस्या आएगी उसको हल करने के लिए हम खड़े रहेंगे। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये था, अगले 3 से 6 महीने में आप अपनी ऑर्डर बुक को कैसा ग्रो होता है वो देखते हैं। करंटली 2000 करोड़ है, सो अगले 3 से 6 महीने में ये कहाँ तक पहुँचेगी? माय डियर ब्रदर, मैं फिर से आपको बोलूँगा, हमारे पास आज की तारीख में ऑर्डर बुक की कोई समस्या नहीं है। आप 2000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी बुक में हैं, 2000 करोड़ के ऑर्डर और ले सकते हैं। हम खुद ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास DCR सेल की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, गॉट इट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Alisha from Invision Capital. Please go ahead. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर मेरा सवाल भी जो अब पहले मुझसे पूछे उसी लाइन पे था। ये जो हमारा ऑर्डर बुक है 2000 करोड़ का, आप कह रहे हैं कि ऑर्डर की कमी नहीं है, हम सोच समझ के ले रहे हैं, क्योंकि DCR सेल में थोड़ा हमको दिख रहा है कि सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है। बट अगले साल अगर हमें ये 20-25% ग्रो करना है एंड हमारी एग्जीक्यूशन अगर 1 साल की है, तो हमें अगले 1 क्वार्टर या 3-4 महीने में काफ़ी सारे ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो उतना हमारा DCR टाई अप है कि हम ये 2000 के ऊपर जा सके? ऑलरेडी है मैडम, ऑलरेडी अपन देखिए ना, हमने जो
जो टारगेट अचीव किया, हमारा टारगेट जो है हमने 9 महीने में अचीव कर लिया, 12 महीने का टारगेट। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो हम कर जो 25% ग्रोथ आपको बोल रहे हैं उसका टाई अप ऑलरेडी हमारे पास पैनल का है, तभी हम अपना टारगेट बनाए और आपको बता रहे हैं कि हम 25% ग्रो करेंगे। नहीं सर, तो फिर हमें कम से कम 3-3.5 हज़ार तक हमारी ऑर्डर बुक जानी पड़ेगी। एंड अब हम बोल रहे हैं कि 2,000 के ऊपर हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि हमें सेलिंग पैनल में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये बाकी का जो है वो लेने के लिए हमें कब तक इंक्रीमेंटल DCR सेल का कैपेसिटी आ जाएगा हमारे लिए? इसको मैडम आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में करीब 800 करोड़ के ऑर्डर नए बिल्टअप हुए हैं। तो एवरी क्वार्टर कुछ नए ऑर्डर बिल्टअप हो रहे हैं, तो एज ऑन डेट पे ऑर्डर नहीं लिया जाता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद हम अपनी जो रिमेनिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से और नए ऑर्डर ले लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एवरी टाइम अपडेट होता ही रहेगा ना। अभी भी जो 2000 करोड़ के ऑर्डर है वो आप ये मानिए चलिए कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर के ऑर्डर तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम ही नहीं है। वही तो सर बता रहे हैं आपको बार बार। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये 2,000 करोड़ का ऑर्डर 3 क्वार्टर में एग्जीक्यूटेबल है और अगले 5-6 महीने में हम जो ऑर्डर लेंगे वो भी अगले साल में हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे 26 में, और इसीलिए 20-25% ग्रोथ जो आप 600 करोड़ का रन रेट देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखो तो 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक 3 क्वार्टर के लिए सफिशिएंट है, और हम तो उस पर भी और ग्रोथ देने की बात कर रहे हैं ना। नहीं, पर सर बात वही है ना, ये 2,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आपको अभी भी 600-650 करोड़ की ही क्वार्टरली रन रेट पे लेके जाएगी जो हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ से QOQ बेसिस पे अगर हमको और ग्रोथ देखनी है तो उसके लिए ऑर्डर बुक यहाँ से ज़्यादा बढ़नी पड़ेगी। मेरा सवाल वैसे है। नहीं, ऑर्डर भी आएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम, पहले DCR सेल का पहले रिक्वायरमेंट है वो हमको क्लोज करना पड़ेगा। अभी हम बताएं ना आपको कि ईयर ऑन ईयर जो हमने जो प्लानिंग करके रखी है उसमें 25% ग्रोथ तो हम मिनिमम कर ही लेंगे। आगे अगर हमको कुछ और कहीं से हमको DCR सेल की व्यवस्था होती है तो उसके बारे में फिर आगे और ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। पर ये जो अगले क्वार्टर की जो गाइडलाइन आपको दिख रही है वो ये दिख रही है कि हम इसको जो है ईयर ऑन ईयर 25% ग्रोथ पे हम इसको ले जाएंगे। अगले क्वार्टर पे हम 600 करोड़ का तो मिनिमम गाइडलाइन आपको दे ही रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए। थैंक यू। Thank you, madam. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Piyush from Dunshuri Investment. Please go ahead. Congratulations sir for very good Q3. सर मुझे जानना था कि आपका अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है? अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 62% पे सर। अभी मतलब 9 मंथ का बता रहे हैं या पूरे साल का एवरेज बता रहे हैं सर? 9 मंथ। और सर हमारा जो नया कैपेक्स है कैपेसिटी वो कब तक आ जाएगा? वो FY27 तक आ जाएगी। ओके, तो सर लोग FY26 में किस तरह से ग्रोथ लाने वाले हैं? एक्चुअली कुछ हमने इंटरनल अरेंजमेंट किए हैं, कुछ इंटरनल एक्सपेंशन किए हैं जिससे हम कुछ कैपेसिटी यहाँ पे ही बिल्टअप कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सारी मशीनों में बॉटलनेक नहीं होता है, कुछ मशीनों का बॉटलनेक क्लोज करना पड़ता है, तो वो हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। तो हम अभी भी जो आपको ग्रोथ बता रहे हैं उसी को कंसिडर करके बता रहे हैं, तो हम 3,3200 करोड़ इजीली कर सकते हैं। तो 3,3200 करोड़ अपने मान के चल सकते हैं अगले मतलब FY26 के लिए? हाँ, हम इजीली कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से। एग्जिस्टिंग प्लांट में हाँ, तो फिर FY26 में किया हुआ है। और FY26 में अपना फिर नया कैपेसिटी मतलब आने का बात है? हाँ, FY27 में नया कैपेसिटी आ ही जाएगा, ये बोल रहे हैं। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Deepak from Kotak Equities. Please go ahead. Hi sir, just wanted to understand, आप बोल रहे थे कि DCR सेल और मॉड्यूल का काफ़ी शॉर्टेज है, तो any change in pricing that we have seen over the last 3-4 months, and any hint of अभी current pricing क्या है DCR मॉड्यूल और DCR सेल का? हाँ, प्राइसिंग मैटर तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग टाई अप है, तो वो तो फिर संभव नहीं होगा, अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, प्राइसिंग जरूर इंक्रीज हुई है थोड़ी, और उसका इफेक्ट हम देख भी रहे हैं, और उसका आने वाले समय में कैसा होगा उसके बारे में तो अगले क्वार्टर में ही बता पाएंगे। अभी स्थिति है दीपक भाई कि हमारे पास जितनी DCR सेल अवेलेबल है उसकी बुकिंग हमने लेके रखी है। तो जो टाई अप हमने प्रीमियर और अडानी हमारे वेंडरों से किया है, वो जितनी क्वांटिटी हमको दे पा रहे हैं उतनी क्वांटिटी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में
हम जैसा कि मैंने अभी पिछली कॉल में भी बताया कि हमको हम खुद भी 1.2 गीगा का प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी का भी नहीं होगा और उस समय हम आपको क्लियर कट डायरेक्शन भी दे पाएंगे। आज हमारी 50%, जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो 24% मार्जिन है, बेसिकली 24% मार्जिन नहीं है, ये अराउंड आप देखिए कि जो हमारा इसमें से 250 करोड़ के आसपास तो सोलर पैनल का परचेज है, वो मार्जिन भी इसमें आ चुका है, करीब 40% के आसपास मार्जिन आता है। तो हमारा खुद का प्रोडक्ट तो एक अच्छा स्टेब्लिश प्रोडक्ट है, बस हम डिपेंड कर रहे हैं सोलर पैनल पे। जैसे ही मार्केट में उसकी एबिलिटी और बढ़ती है आगे इसको आगे अच्छे से ले जाएंगे। हाँ श्योर सर, हाँ थैंक यू। थैंक यू जी। Thank you. The next question is from the line of Bharat Shah from Ask Investment Manager. Please go ahead. हाँ भरत भाई बोलिए। Policy is issued instantaneously on populating it. थैंक यू सर। बताइए सर। भरत भाई बोलिए। हाँ दिनेश जी कैसे है? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताइए। दिनेश जी दो चीज, आज हमारी ऑर्डर बुक का ब्रेकअप स्टेट्स वाइज कैसे है? वो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में वेबसाइट पर डाला है, आपको मिल जाएगा सब वहाँ पर भी। तो वो सारा प्रेजेंटेशन पूरा डाला हुआ है कि स्टेट वाइज का ब्रेकअप भी डाला है, सब कुछ है उसमें। वो मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन कैन यू क्विकली गाइड मी अबाउट दैट? बताइए दिनेश आप बताइए। हाँ इसमें सर एक्चुअली कैसा है कि करीब हमारे पास आज की डेट में जो ऑर्डर है वो करीब 2070 करोड़ का है, और इसमें बात करें तो 750 करोड़ जो ऑर्डर है वो हमारे इसके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं। 116 करोड़ हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, राजस्थान के भी हैं। अभी जो करीब 1200 करोड़ के ऑर्डर हमारे महाराष्ट्र से हैं, और रिमेनिंग में बात करें तो यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान। अच्छा, तो 4 स्टेट में टोटल ये 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। करेक्ट। And in all the 4 states, payments are happening within the guideline that you suggested. 90% of payment within 90 days. Yes, sir. And remaining 10% can take anywhere from 150 to 240 days. Yes, sir. तो सभी स्टेट्स में द पेमेंट कोई इशू नहीं है भरत भाई, किसी भी स्टेट में कोई इशू नहीं है पेमेंट का, और कोई इशू नहीं है इंस्टॉलेशन का। सिर्फ इशू है अपने पास जो अपन ने टाई अप करके रखा है अपने वेंडरों से, जितना पैनल अपने को मिलता है उतना पैनल अपन आगे सेल करके बढ़ा देते हैं। अभी आने वाले समय में पैनल की क्वांटिटी और बढ़ रही है, तो अपना भी 25-30% के आसपास जो पैनल बढ़ेंगे तो उसमें अपनी भी ग्रोथ होगी, अपन भी आगे उस पैनल को लगाएंगे। और 25 से 30% जो ग्रोथ आप दिनेश जी बता रहे थे, वो कौन से कितने पीरियड तक आपकी एस्टिमेशन है ये 25-30%? देखिए आपने देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शक्ति पंप्स और अपनी टीम जो है, क्योंकि आप मेरे शेयर होल्डर हो, आपको सब पता है, अपनी जो टीम है वो अपने आप से इतनी कैपेबल है कि हम जो भी ऑर्डर आएगा उसको टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने के लिए रातों दिन काम करेंगे। हमारी खुद की कैपेसिटी को लेके कोई इशू नहीं है। अभी जो हमको इशू लग रहा है सिर्फ DCR सेल को लेके इशू लग रहा है। अपन ने ऑलरेडी पंप की कैपेसिटी डबल करने के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट लेके उसका QIP करके उसका ऑर्डर करके सब चीज़ें आगे बढ़ा दी है, कर दी है, वो चीज़ें हो चुकी है। दूसरा अपने को ये भी दिक्कत आ रही थी कि पैनल में अपने को जितनी रिक्वायरमेंट है वो पैनल मिल जाए, तो उसके लिए भी अपन सोलर का प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में मोटर पंप और शक्ति पंप की वजह से कोई समस्या नहीं थी, समस्या आई है सिर्फ अपने को सेल की वजह से, और सेल का भी अब अपन ने प्लान लगा लिया है, तो अगले 2-2.5 साल में वो सोलर का अपना सेल वाला प्लांट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये सब सिचुएशन है कि अब किसी भी सूरत में अपने आप को आगे बढ़ा ही रहे हैं। शक्ति पंप्स की तो जो आपने देखी है कि वो अपने पूरी टीम अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है। जी, तो कैन वी से इवन दो
सेल की कंस्ट्रेंट आज के दिन अभी भी मटेरियल है और वो एक अरसे तक शायद रहेगी, बट हम 25% से ग्रो करते हैं तो अगले 3 साल में वो कंस्ट्रेंट के साथ भी हमारा बिजनेस दुगना होगा। जरूर होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। इवन विद सेल 1.2 गीगा का प्लांट लगा रहे हैं, इसीलिए अपन सोलर सेल का प्लांट लगा रहे हैं। जी जी हाँ, बट वो उसको समय लगेगा। इन द मीनवाइल हमारी ये जो एग्जिस्टिंग समस्या है वो उसको ध्यान में रखते हुए भी 3 साल में यदि 25% से ग्रो करते तो डबल हमारी वॉल्यूम होनी चाहिए। उसमें आपको कोई बड़ी दिक्कतें नहीं नजर आती? कोई दिक्कत नहीं दिखती, कोई दिक्कत नहीं दिख रही उसमें, एकदम करेंगे हम जी। और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिपेंडिंग ऑन जस्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स, दूसरे में क्या हम प्रयास कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं? हाँ भरत भाई, जैसे ही ये होता है अपनी कैपेसिटी अनाउंस होगी तो जरूर अपन दूसरे स्टेट भी खोलेंगे। और दूसरी में एक सबसे बढ़िया बात अच्छी बता रहा हूँ, जो हम लोग शायद अंडर एस्टिमेट बिजनेस है। एक्सपोर्ट बिजनेस अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और वो बहुत बड़ी मेहनत के साथ ग्रो करता है। अभी हिंदुस्तान की सारी कंपनियां मिलकर जितना एक्सपोर्ट नहीं करती है, शक्ति पंप अकेली एक्सपोर्ट करती है। तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा करने जा रहे हैं और डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे ही अपना ये जो प्लानिंग अपनी आगे बढ़ती जा रही है, हम हमारी प्लानिंग से, हमारे परफॉर्मेंस से हम बहुत खुश है। हमारी टीम भी उनके अपने परफॉर्मेंस से खुश है। जी। एंड एक्सपोर्ट्स आज के दिन कितना हुआ है हमारा जो इस क्वार्टर में 106 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, जो पुराने क्वार्टर में 53 करोड़ था। तो पूरा 9 महीने में 312 करोड़ हुआ। 312 करोड़ सिर्फ हम एक्सपोर्ट से लाए हैं। एक्सपोर्ट से लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। जी। एंड वहाँ हमारे रियलाइजेशन एंड मार्जिन्स यहाँ से बेटर? यहाँ से बेटर है मार्जिन। और वहाँ पेमेंट टर्म्स कैसी है? वहाँ पेमेंट टर्म्स भी कहीं हम लोग 60 डेज एलसी साइड पे लेते हैं, कहीं साइड पे लेते हैं। अलग अलग कस्टमर के साथ अलग अलग है। जो पुराने डीलर हैं उनको हम थोड़ा क्रेडिट देते हैं, बाकी से एडवांस और एलसी पे करते हैं। और भाई यहाँ जैसे 90% 10% वाला जो प्रॉब्लम है वो वहाँ शायद नहीं होगा। वहाँ नहीं है सर। तो डिलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है पूरा। ठीक। Thank you, Dinesh. This was very useful. And thank you, thank you, Dinesh Patel. Thank you, sir. Good to hear. Thank you. The next question is from the line of Priyesh from Mahindra Mutual Fund. Please go ahead. Yes. Hello. Good afternoon, sir. Can you hear me? Hi, yes. बोलिए, Priyesh. Sir, so capacity of let's say cell manufacturing, जहाँ तक मुझे पता है कि अराउंड 7-8 गीगावाट है, तो विच इज़ बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ DCR मॉड्यूल्स एज सच। तो उसमें मुझे जानना था कि ये जो DCR मॉड्यूल का जो चैलेंज है, इज इट बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, बिकॉज these OEM players are kind of focusing on exports, और कुछ और प्रॉब्लम है? मतलब जस्ट इस पे इलाबोरेशन चाहिए था। नहीं, वो तो सब अब बहुत अच्छे तरीके से लोग, अपन ने भी इनके साथ कुछ MOU किया है, कुछ इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे वेंडरों के साथ, और आने वाले समय में जो बड़ी कंपनियों की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस स्पीड से हम भी प्लान कर रहे हैं कि अगले 2-2.5 साल में हमारा भी प्लांट आ जाएगा 1.2 गीगा का, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी होगी। तो हम उसी तरीके से आगे प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 2-2.5 साल बाद कोई थ्रेट ना हो। अभी से हम लोग इस पर प्लान कर रहे हैं, और अभी जो हमको लगता है कि जो कैपेसिटी आ रही है, यह थोड़ी बहुत शॉर्टेज बनी रहेगी इस सेगमेंट में, बट हम उसकी पूर्ति करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम 25% की ग्रोथ प्लान करके चल रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई DCR सेल के साथ कोई कंपनी आती है, तो हम अपना ये जो 25% वाला जो स्टेप है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी पंप बनाने की, मोटर बनाने की, VFD बनाने की, स्ट्रक्चर बनाने की ऑलरेडी है, और वो हम इंक्रीज भी कर चुके हैं। ओके।
जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो अपना रिक्वायरमेंट क्या होगा लेट्स से 20-25% ग्रोथ के लिए इन टर्म्स ऑफ मेगावाट कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है अपना सोलर मॉड्यूल का? अगले साल के लिए अपना रिक्वायरमेंट जो है वो आप ये मान के चलिए 1 गीगा के आसपास होगा। 1 गीगावाट, फिर उस पर फिर 25% ग्रोथ आएगा तो 1.2 एंड देन 1.4 फॉर अभी हमारी 600-700 मेगावाट है, आने वाले समय में 1 गीगा होगी। और जैसे ही हमारी ये कैपेसिटी ऑलरेडी पंप सेट VFD की ऑलरेडी है, हमको पैनल की कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी हमारी बढ़ाते जाएंगे। अंडरस्टूड। और सर कपल ऑफ मीडिया आर्टिकल्स में पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि हमारी इंडिया में सेल कैपेसिटी ऑलमोस्ट क्लोज टू 110 गीगावाट हो जाएगी। तो अगर इन FY27 इनफैक्ट तो फिर ऐसे देखा जाए तो ओवर कैपेसिटी का तो कंसर्न होगा, राइट? आई मीन फिर उस हिसाब से मतलब फिर हम भी प्लांट क्यों डाल रहे, कंसिडरिंग हमारे रिटर्न रेशियो भी कम होंगे, इवन दो इट विल बी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल मतलब जस्ट इस पर क्लैरिटी चाहिए। देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको पता है कि सोलर पैनल बनाने की हमारी कैपेसिटी देश में है, जो आप सोच रहे हैं वो सोलर सेल बनाने की कैपेसिटी अभी भी डाउट है कि बहुत से लोग जो हैं उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है सोलर की, हमारे देश की रिक्वायरमेंट है 500 गीगा। और अभी आप देख रहे हो कि सोलर ग्रह भी स्टार्ट हो गया है प्राइम मिनिस्टर का, जो गरीब बिजली फ्री वाला एरिया जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट करीब 70-80 गीगा के आसपास आने वाले समय में होगी। तो जिस स्पीड से सोलर का कंजम्पशन देश में बढ़ रहा है, उस स्पीड से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उस स्पीड से ये सस्टेनेबल हो गया है। आज आप आपके घर में भी सोलर पैनल लगाएंगे तो आपका बिजली का बिल आप 0 कर पाएंगे, तो इतना और 3 साल में अपना पैसा वसूल कर पाएंगे। तो देश में अभी आने वाले समय में EV की वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो पावर की रिक्वायरमेंट तो हमारे देश में रहनी है और आगे बढ़नी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ इसमें कोई किसी चीज़ से डरने की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू। Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ajay from Niveshaay. Please go ahead. हेलो। हाँ अजय बोलिए। सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द रिजल्ट। सर मेरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है कि जैसे मगलतला योजना में अपने को जो नया ऑर्डर मिला है, तो उसके अंदर का टेंडरिंग प्रोसेस कैसा है, और वहाँ पर क्योंकि L1 टेंडर है, तो क्या जो अभी अपन मार्जिन बना पा रहे हैं वो सेम मार्जिन उस ऑर्डर में भी बना पाएंगे? नहीं, एक्चुअली वो जो है ये वाले जो टेंडर में सेम डिसीजन मेकर फार्मर है, डिसीजन फार्मर से आएगा। और हमारे पंप महाराष्ट्र में अच्छे से लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे कंपटीशन में जिन लोगों ने ऑर्डर लिए थे उनके पंप सिलेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इश्यूज हैं अभी वहाँ। और उसमें सर मेरा क्वेश्चन प्राइसिंग को लेकर है। जैसे कुसुम योजना में रेट कार्ड ऑलरेडी फिक्स था ना, तो इस वाले में जो मगलतला योजना में जो प्राइसिंग आया है वो L1 के हिसाब से आया है या वो प्राइसिंग कैसे आया है, और क्या उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अपन जो अभी 22-24% मार्जिन बना रहे हैं वो बना पाएंगे? क्वेश्चन ये है। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी ये जो टेंडर मगलतला का जो टेंडर आया है, इसके अंदर जो L1 वाला कंसेप्ट नहीं है, ये भी रेट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी डिसीजन मेकिंग फार्मर के पास में है। इसमें कुछ वेराइटी में कुछ परसेंटेज में रेट कम हुए हैं। आपको मैं सेपरेटली इसका डिटेल भेजूंगा। ओके सर। और सर जैसे मगलतला योजना में ऑलमोस्ट 90% का सब्सिडी है, और जो कुसुम योजना फॉर महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे 60% जैसा सब्सिडी है, तो फार्मर को क्या इंसेंटिव है, मतलब कि वो फिर कुसुम कंटिन्यू करें? तो क्वेश्चन ये है सर कि क्या आगे जाके महाराष्ट्र स्टेट में कुसुम योजना का जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा हमको कुछ लग नहीं रहा है कि आगे जाके कुसुम में कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा।
तो दोनों स्कीमें चल रही हैं, दोनों के पास अपने अपने फंड्स हैं, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। एक्चुअली सर इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि स्टेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए उनको 2 स्कीम लाना पड़ा, अदरवाइज तो वो काम कर ही रहे ना। और महाराष्ट्र ने पहले भी अच्छा काम किया है, हमेशा अभी भी एग्जीक्यूशन देखें तो लीडिंग पोजीशन में महाराष्ट्र ही है। करेक्ट ओवरऑल कुसुम में और अदर स्कीम्स में भी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि सर जैसे अपन जैसे बता रहे हैं कि अपना जो अभी क्वार्टरली रन रेट 600 से 700 करोड़ है, और अपने को जो बॉटल नेक क्या प्रॉब्लम आ रही है वो ये मॉड्यूल के कारण आ रही है, और जिसके कारण अपन ने QIP भी करा है फॉर मेकिंग फॉर इंस्टॉलिंग अ सेल प्लांट, करेक्ट। तो सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे पंप्स एट दी एंड जाके इंस्टॉल करने पड़ते हैं फील्ड में, तो सर क्या अपनी EPC कैपेबिलिटी इतनी है कि अपन एक क्वार्टर में मतलब जो अभी 600 650 करोड़ कर रहे हो वो आगे जाके मे बी 1000? Hello. Yeah. Hello. Sorry to interrupt. Please come after the follow-up question, as there are many participants in the line. ओके, मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। हाँ, अपनी कैपेसिटी है ब्रदर, हम जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your question to 2 per participant. The next question is from the line of Deepak. Please go ahead. हेलो। हाँ दीपक भाई बोलिए। या कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर गुड सेट ऑफ नंबर्स। सर जस्ट चेक करना था कि हमने अभी रिसेंटली इनेबलिंग रेजोल्यूशन दिया था 400 करोड़ के फंड रेज का, तो उसका डिटेल आप शेयर कर पाएंगे, उस फंड्स का पर्पस क्या है, और शायद आपने इसके बारे में ये भी बोला था कि हम लोग शायद मॉड्यूल का कैपेसिटी जो देख रहे हैं, इसमें क्या हम सेल का भी कैपेसिटी प्लान कर रहे हैं और कितना कैपेसिटी हम प्लान कर रहे हैं इसमें? हाँ, इसमें हम वेफर टू सेल का कैपेसिटी ही प्लान करेंगे क्योंकि DCR सेल में उसी का रिक्वायरमेंट है। और 400 करोड़ का जो फंड है उसको हम सोलर प्लांट जो सर ने बोला है कि सोलर DCR सेल का जो 1.2 गीगा का जो प्लान चल रहा है उसमें ही इसको यूटिलाइज करने का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सर हमारी टोटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट कितनी है, और इसमें ये इक्विटी के लिए यूज करेंगे और सामने कुछ डेट भी लेने का प्लान कर रहे हैं हम लोग? वो डिटेल आपको बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Rohan from Elvis Capital. Please go ahead. सर नमस्कार और बहुत बहुत बधाई अच्छे सेट ऑफ नंबर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर जस्ट एक जानना था कि सरकार ने 49 लाख पंप्स ओवरऑल स्कीम के अंडर अप्रूव किए, जिसमें मैक्सिमम पंप्स कंपोनेंट सी में, और जिसका जवाब आप पहले भी दे चुके हो, बट सर एग्जैक्ट इश्यू कंपोनेंट सी में क्या आ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी ऑलमोस्ट 16 गीगावाट का फीडर लेवल सोलराइजेशन हो रहा है, तो क्या उसमें पंप्स नहीं रहेंगे और फिर कंपोनेंट सी आगे कैसे बढ़ेगा? एग्जैक्ट इश्यूज कैसे क्या आ रहे हैं वो समझना था। देखिए, इसीलिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया है अजमेर में, और इसीलिए उसमें हम स्लो चल रहे हैं। एक्चुअली ये स्कीम है इंडिविजुअल पंप्स को सोलराइज करके किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना। इसमें ये जरूरी है कि उसका पंप बदला जाए। जो स्कीम है उसके अंदर पंप नहीं है, उसकी वजह से वो स्कीम सक्सेसफुली रन नहीं कर रही है, इसीलिए लोग सोलराइज लेवल पे जा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हमने मिनिस्ट्री को प्रेजेंटेशन भी दिया है और भी दे रहे हैं हम कि आप इसमें पंप अगर बदलोगे तभी ये सस्टेनेबल होगा और तभी आगे बढ़ेगा, तभी इसका पेबैक होगा। एक पंप जो है फार्मर का 50,000 रुपये साल की इनकम करेगा और डिस्कॉम की 1 लाख रुपये साल की इनकम करेगा, और डिस्कॉम का पैसा 3 साल के पहले वसूल हो जाएगा। तो 100% अगर पैसा लगाते हैं वो तो ये सब चीज़ें चल रही है पाइपलाइन में। हम खुद भी अपने प्रोडक्ट को वहाँ अजमेर में हमने लगाया है, उसमें हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो कुसुम सी के जो प्रोजेक्ट है वो भी स्पीड से आएंगे और उसकी भी रिक्वायरमेंट बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। बट आगे जाके आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुसुम सी अगर थोड़ा स्लो पेस में चलता है तो क्या सरकार उसमें ऑफ ग्रिड के ही पंप्स बढ़ा सकती है आगे जाके?
इसमें तो देखिए अभी क्या है कि ये तो नंबर्स तो बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर तो सैंक्शन गवर्नमेंट भी कर लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। सारी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ देख रहे हो आप, महाराष्ट्र हो कि वो राजस्थान हो कि हरियाणा हो, सभी स्टेट में नए कनेक्शन देने में जो 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है उससे कम पैसे में तो सोलर पंप मिल जाता है, और वो पंप भी 50,000 रुपये साल की बिजली खाता है। तो अब तो लोग उधर जा रहे हैं कि नए पंप कनेक्शन की बजाय सोलर पंप दिया जाए, और जो पंप ऑलरेडी कनेक्शन दिए हुए हैं उनको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाए। तो हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा इससे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Shushruth from Caprise Investment. Please go ahead. हेलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे एक लाइनमैन या तो पीओ जीएसआर रिपोर्ट करता है और वो सर्कल ऑफिस जाता है, उसके 90 दिन में हमें पंप लगाना होता है। तो डीसीआर सेल का जो अभी क्रंच है उसके चलते हुए क्या हम वो 90 दिन में लग जाता है अपना पंप? हाँ लग जाता है, हम उतने ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं जितनी डीसीआर सेल हमको पीछे से मिलने की उम्मीद होती है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था, ये जो राजस्थान का हॉर्टिकल्चर वाला जो टेंडर है फाइनेंशियल इवोल्यूशन स्टेज में जो है, इसको काफ़ी समय हो गया सर, जिसमें अपन यूपीएससी में बिड किया है। आप किस टेंडर की बात कर रहे हैं? राजस्थान हॉर्टिकल्चर वाला। राजस्थान हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी सेक्रेटरी टेंडर पे काम कर रहा है और हम उसमें ऑर्डर सप्लाई कर ही रहे हैं। हर क्वार्टर में हमारे कुछ ऑर्डर्स आते हैं, हम सप्लाई करते हैं। तो टेंडर कहाँ है वहाँ? टेंडर तो कोई है ही नहीं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. That was the last question for the day. Due to time constraint, we will close this call. I now hand the conference over to Mr. Dinesh for closing comment. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी ईवाई टीम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। अभी शायद आज भी आपने जो क्वेश्चन पूछे होंगे उनको हम आपको समझाने में हमारी पूरी कोशिश रही होगी और आगे भी रहेगी। तो आपको जो भी और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी ईवाई टीम से कांटेक्ट करें। और फ्रंट विजिट के लिए आप सभी लोग हमारी फैक्ट्री में आ सकते हैं। जब आप सोचें, जब बताएं हमारी ईवाई टीम को, तो हम आपको फैक्ट्री विजिट कराएंगे। Thank you very much. On behalf of Shakti Pumps Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.